Good morning, everybody. Once again, warm welcome to Director Sir and dear teachers. Today, we assemble here for a purpose, as you all are aware that we are time to time doing our training session, which is in-house as well as ex-house. In-house training program is conducted most of the time personally by individual schools. That is called as a COE training program. Most of all are aware that what is COE. As you are all aware that COE, the form is known as Consult of Excellence. Because most of the teacher is already trained here, but CBSE provide additional training. Time to time, they provide such kind of training which is required in your classroom, in your school. Because this training always create a innovative and which is a very knowledgeable. My dear teachers, I request all of you, please, from the new session, you have to be very much punctual about your completing sessions. This time, this is the last session of this year, and we are very proud that we are going to complete anyhow. But this is very mandatory for all of you. At least 25 in-house and 25 ex-house performance is required. So this is the details of your COE training program. I am here to present as a resource person, myself Rakesh Kumar Sinha. I will conduct your training session for today. In the meantime, I request to Director Sir to inaugurate the session. Please give a round of applause. Thank you very much. Good morning to all of you. Good morning. Rakesh ji already told about the COE program, in-house program, and already COE training 25 आपको 25 hours from COE and from 25 hours in-house training. In-house training means training for teachers in school premises itself. Training for teachers, innovative training regarding teachings, training regarding management, training regarding each and every activity of the school. We are playing everything. But what is that? We are doing theoretical. We are doing theoretical everything. Day by day in the school campus, every teacher playing role as a teacher. Suppose that you coming in the school, having lit smiling among children, so that your appearance must be very much positive in the classroom. So this is very much important, very much positive to each and everybody. We are doing, indeed we are doing every day. Indeed we are doing at every moment. But experience regarding training. What CBSE already made, regulation, rules and regulations, 25 hours in-house training, 25 hours COE training given by directly COE. It means CBSE regional officers. At first, today is the last session. Today is the last session of this 22-23 last session, and from tomorrow it will be 23 and 24. So today is the last session. So अंत भला तो सब भला। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जिनका भी नाम CBSE में है वो ऑलरेडी नेक्स्ट सेशन से very much positive
very much cooperative towards the school. अगर नाम आपका CBSE में है तो ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए अगर दिया जाता है तो उसको आप करने का कोशिश करें। आप समझिए कि इसको बर्डन समझिए, ये तो स्कूल के लिए बर्डन समझ, लेकिन हिंदी अगर हम करते हैं तो कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं। इसलिए ये हर स्कूलों में देखिएगा प्रत्येक महीना में एक इन हाउस ट्रेनिंग 5 या 6 घंटे का होने लगा है। आप सुनते भी होंगे और मालूम भी होता होगा। इन हाउस ट्रेनिंग और जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है, ऑफलाइन ट्रेनिंग होता है CBSE से, वो पेड ट्रेनिंग होता है ना। तो समझ आ गया कि सब मिलके एकजुटता से काम लें, एकजुटता से काम लें। CBSE का स्कूल पहले इजी गोइंग था, अब बड़ा टफ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर चल रहा है। अब इसी में सीखने का भी अवसर मिलता है। तो कहने का ये उद्देश्य है कि रिसोर्स पर्सन आपके यहाँ से 2-3 बन चुके हैं, तो आपके संस्कार इंटरनेशनल स्कूल का नाम हाईलाइट हो चुका है। आपके रिसोर्स पर्सन का कॉल सेंट माइकल में हो रहा है, नॉटरडेम में हो रहा है, और जो है मुजफ्फरपुर DAV में, छपरा DAV में। तो आप CBSE में लिस्ट देखेंगे, आपके स्कूल का नाम सबसे सेकंड पर है। संस्कार इंटरनेशनल स्कूल है, गिवन टू रिसोर्स पर्सन है ना। तो आपका स्कूल का नाम बहुत इस बार है। तो और मन से काम करें। अगर स्कूल में काम करते हैं तो 6 घंटा आपका जो होता है वो आपका अपना नहीं होता है, वो स्कूल का होता है। और मन से काम करें, है ना। विशेष कुछ टीचर्स हमारे हैं 12 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं। तो और लगे कि यहाँ से ही रिटायरमेंट करें, यहाँ से ही रिटायरमेंट करें। कोई भी डायरेक्टर हम मालिक नहीं है, एक सिस्टम के जो है डायरेक्शन देने के लिए हम रिस्पॉन्सिबल है ना। सभी स्टाफ का कोऑपरेशन उतना ही होता है जितना एक व्यक्ति का होता है। आप सब एक संस्कार इंटरनेशनल स्कूल परिवार के अंदर तो मन से काम करें और इस कार्यक्रम को मन से बढ़ाएं। किसी को ये न लगे ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है। अब आप समझेंगे ये CBSE का प्रोग्राम है, तो इसको आप मन से करें और समझें और समय से ट्रेनिंग भी करने का कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। आगे कार्यक्रम बढ़ाएं। Thank you very much, sir. You have given very informative information about to the teachers. So we are proud of you. So today's session is related to which is very important for your day-to-day classes or a school. The first topic I have chosen. So today topic is developing a learning culture. This is very important and very smooth for your daily practicing in your classes or schools. So very important to be learn this module. I will go through each and every points which is very important related to your knowledge also. I have chosen this topic because I understand this is important as well as knowledgeable. How much your school is efficient, we don't know, but efficiency is depend on their distributions, their contributions regarding how much you give to your school in a good manners. Suppose there are some good teachers, some good principals is there, they are running schools in a good manner, but it doesn't mean that their culture is also good. They anyhow they can manage the school in a very good manner because their knowledge is very efficient, teachers is very efficient, they know about how they can run their classes and schools. So this is depend on the classing, the educated class of teacher and also the principal. But sometimes they are, sometimes मानिए कि वो अगर वो ट्रांसफर हो जाते हैं या प्रिंसिपल उस तरह के नहीं रह पाते हैं, your school will not run in a good manner. That time you will feel that learning culture is very important in your life.
Because once you put the culture of the school well established, it will remain for a long run. It will affect on your school students individually for a long period. So this is a very important how much your teacher is intelligent, how much your school infrastructure is good, but your learning culture is not good, the school will not develop. Development of a school is depend on learning culture. Most of the time we does not clarify that what is the difference learning and culture. We don't understand learning and culture. This is both the same things, but this is the different parts. Sometimes only having a good marks of a student, suppose 85-90%, the school uniform is important. Sometimes you feel that somebody is speaking English. This is not enough. Learning culture means is something different from apart from daily basis you are doing in your class to class activity. You have to be maintained. You have to be developed. Every time new thing in your school or classroom. A well-maintained class or well-maintained student depend on how much you learn to the student in a manner. So this is a very hopefully and it is a very incredible for a school who learn the learning cultures. Cultures is very important. I am giving some example. You can learn from example very well. Suppose first time every female, हर एक फीमेल को अपने शादी के बाद अपने लॉज के घर में जाना पड़ता है और आप जब लॉज में जाते हैं तो देयर इज ए डिफरेंट फ्रॉम योर ओन हाउस. So what is the matter difference? The matter is difference is culture. कभी कभी आपको अपने सास से अपने ससुर से बहुत बार सुनना पड़ता है कि इनका हैबिट ही खराब है, क्योंकि ये घर का कल्चर ही खराब है. ऐसा आपको बहुत बार सुनने को मिलता है. Why this is happening? Because there is not a basic rule is given in your house. There is a different types of culture is there, so it cannot be judged by others. If your culture of your house is correct, nobody can claim you. This is the first example I am saying you. Next example for learning culture. Most of the time आपके घर में बहुत बार पूजा सेलिब्रेट होते हैं, उसमें छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक इन्वॉल्व होते हैं. Most of the time छोटे बच्चे को तो कभी मालूम ही नहीं कि what is the purpose of this पूजा. आप उसको लेकिन उसमें इन्वॉल्व करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि ये बड़े होकर के उस पूजा को सेलिब्रेट करेंगे जैसे आज मैं कर रहा हूँ. So this is the habit, this kind of habit. Learning means this is a kind of culture you are developing in your son and daughter, and they are only imitating you. They are only imitating by learning. आपको देख करके वो जानते हैं कि अच्छा ये पूजा ऐसे होता है और इसके ये मीनिंग है, लेकिन उनको बचपन से ये नहीं मालूम होता है कि ये क्यों सेलिब्रेट करता है. So this is the learning culture. Another example, आप जैसे दिवाली होली सेलिब्रेट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम दिवाली में क्या होता है कि 2-3-4 दिन पहले से आपके जितने भी मेंबर हैं वो कुछ सफाई में लग जाते हैं और कुछ परचेज करते हैं, दिया परचेज करते हैं, मिठाई परचेज करते हैं. How it is possible? Because this is a culture developed in every individual. आपको मालूम है कि दिवाली आ रही है, we have to arrange these things. So this kind of example, set up this example, which can you learn easily what is culture. हिंदी में हम लोग जैसे बोलते हैं लर्निंग, जो पढ़ाई है, और हमारा नीति क्या है, हमारा कल्चर क्या है. तो ये जो नीति है आप खुद डेवलप करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होता है, डे टू डे प्रैक्टिस करना है. इट इज नॉट इजी टू डेवलप इन ए वंस डे. इट इज डेवलपिंग बाय most of the time when you are in habit of doing this kind. So this is a very important for all of you. चलिए साइन करिए ना, टिकट करिए.
So there is a lot of example. Today's session is very live session. I would like to request all of you to give some examples also while you learning or understanding me. So this is very important. This is a dual interactions is required because most of the time one-way dialogue is boring to you. So I would like to request each and every they can make any questions to me or they can give their suggestions also. It is very live session and I request this is a very important topic is learning culture. I am giving another example of learning. There is some kind of school learning cultures. Most of the teacher is aware that only learning culture is coming to school in a uniform or their nails should be trimmed or their dress should be clean, their shoes should be polished. These are not learning culture. These are your, because when you judge with learning cultures, you cannot judge with this kind of. This is a physical, this is a visible. If you can control this because आप इसको देख पाते हैं और तुरंत आप उसको बोलते हैं कि ये आपका गंदा है. But this is a not culture. Culture means if once you told to your student, you have to be in proper uniform and they have to maintain every times. That is your learning culture. So this kind of habit should be incorrect in your students. I mean to say, जो visible है वो आप रोज बोलते हैं कि आपको इंग्लिश में बात करनी चाहिए. But why don't you give him the task? If you will not speak in English, you will be compelled to speak in English because this is very important for your life. Communication part is very important for life. So this can be happen. This can be happen, but not in one day. I am telling you this kind of learning habits, learning culture cannot be improved in one day. You have to be in process. Daily basis you have to be in process. So this is a kind of learning cultures. लर्निंग इफेक्ट विजिबली बहुत सारे समय में क्या होता है कि लर्निंग जो होते हैं वो विजिबल होते हैं, है ना, लेकिन वो कल्चर जो होते हैं उससे डिफरेंट होते हैं. आपको कुछ चीज जो है दिखाई देता है. जैसे कि मैं अगर बोलूं कि किसी स्कूल का लर्निंग कल्चर बहुत अच्छा है तो कैसे आप जज करते हैं? आप जब स्कूल के आसपास मूव करते हैं तो देयर इज सम वाइब्स, आपको कुछ दिखाई पड़ता है, कुछ महसूस होता है, आप फील करते हैं कि एवरी स्टूडेंट इज स्पीकिंग इन इंग्लिश. ये स्कूल अच्छा होगा, इसकी जो बेस होगी बहुत ही स्ट्रांग होगी. आप जब किसी बच्चे को बात करते हुए देखते हैं, उनका यूनिफॉर्म देखते हैं, उनका डिसिप्लिन देखते हैं, उनका मैनर देखते हैं, दे से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, whatever they are speaking, it affects you. So this kind of vibe is the learning effects. This is the development of your learning culture also. आप किसी स्कूल में जाते हैं, उनका डिसिप्लिन देख करके आपको बहुत अजब लगता है कि ये स्कूल में बहुत सारा डिसिप्लिन है, मेरा भी बच्चा अगर इसमें पढ़ता तो ज्यादा अच्छा. So this kind of learning effect should be in your school also. There is a lot of example is there, or this can be developed or this can be maintained. This is another way. First you have to develop learning culture. After developing, the culture should be maintained. So I cannot say immediately maintain the learning culture, but at the same time I have to speak about the learning culture to be developed. So learning culture डेवलप करने के लिए क्या क्या हो सकते हैं? एवरी इंडिविजुअल का एफर्ट होना चाहिए. जैसे कि आप टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, इवन अदर स्टाफ्स हैं, अनदर एनी स्टेक होल्डर ऑफ द स्कूल, दे कैन डेवलप देयर लर्निंग कल्चर्स. लर्निंग कल्चर्स कैन बी क्रिएट. इवन आप कभी आप फील करते होंगे कि अगर स्कूल के बाहर कोई अगर किताब की दुकान है तो आप उससे पूछते हैं कि भैया ये स्कूल कैसा है. दे आल्सो इन्फ्लुएंस यू. इस स्कूल का कल्चर बहुत अच्छा है भैया, इस स्कूल में आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा. They are speaking in English. So this kind of learning culture
can influence, जबकि वो हमारा किताब लिखने वाला डायरेक्ट हमारा इन्फ्लुएंसर नहीं है, but due to the development of your learning culture, it affects to the stakeholder. They are also a stakeholder because they influence to the guardians, they influence to the other person. So it can be developed by anyhow, anybody, any person can develop, but only the things what you are going to be developed in your school. ये सबसे important चीज है कि आप क्या करना चाहते हैं। पूरे साल तो सिर्फ पढ़ाई कराते हैं, अपने कोर्स कंप्लीट कराते हैं, लेकिन आपने सोचा कि आप क्या कराना चाहते हैं। What is the base of doing daily activity? आपको क्या ऐसा कराना है? जैसे कि मैं I am giving my example. What I am doing in my class. Before starting, I have started this kind of activity. Before starting any subject, मेरा जो subject है English में, वो start करने के पहले I do some exercise. Only 2 minutes. I give 2 minutes every individual. मैं खुद करता हूँ उसके साथ. I do practice the same activity with the students. उनको 2 मिनट में जितना आनंद आता है उतना 40 मिनट में नहीं आता, because they are not in habit of doing. They understand this is a very important for me. उनको मैं थोड़ा योगा के लिए बोलता हूँ, चाहे उनको मेडिटेशन के लिए बोलता हूँ, they feel very good. उनको लगता है कि ये होना चाहिए. So ये जरूरी नहीं है कि school is providing such and such point and you are just looking at that point and you are practicing for them. You can also give an example. You can also start any activity. Then the development of the school is required. It is not easy to develop any school. This is a cumulative effort, you can say. It is development by each and everybody. मैंने स्टार्ट कराया अभी मैंने बहुत सारे क्लासेस में, इवन जो हायर क्लासेस हैं उनमें तो कंपलसरी मैंने बोला है कि if you will not speak in English, you will fine. 10 रुपीज मैंने फाइन का भी स्टार्ट किया है. सो ये लर्निंग कल्चर है. दिस इज ए लर्निंग कल्चर. आप सीखते हैं कि अच्छा सर ने ये बोला है तो मैं नहीं कुछ बोलूंगा. मैंने ये बोला है कि आप सही नहीं बोलिए, बट स्टिल यू हैव टू स्टार्ट इन ए हिंदी इंग्लिश वर्ड. इनसे उनके माइंड में क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि उनको लग रहा है कि दिस इज इम्पोर्टेंट. कम्युनिकेशन आज के डेट में कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सभी को मालूम है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे जो 10th 12th में भी हैं उनको मालूम है. विदाउट कम्युनिकेशन दे कैन नॉट पुट देयर एफर्ट्स इन अ हाई लेवल. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ यू मेक ए प्रैक्टिस ऑफ द स्टूडेंट्स दे कैन स्पीक इन इंग्लिश. सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, जस्ट आई एम गिविंग 2 एग्जांपल्स. ऐसा नहीं है कि मैं अपने से बड़ाई कर रहा हूं, बट आई ट्राई टू डू सम थिंग्स व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. ये मैं कोशिश करता हूं कि कुछ थोड़ा सा अलग हो. And on the basis daily I try to innovate, something which is very new for the student, which is the need for the student development. ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पढ़ाई कीजिए 85% मार्क्स आ गए 90%, then you will become happy. Most of the time only academic thing is required in most of the students, most of the schools. They forget to develop for any student curriculum activity is also required. आपको करिकुलम में थोड़ा सा एक्टिविटी को बढ़ाना होगा. अगर आप नहीं बढ़ाते हैं तो it is not overall development of your school as well as yourself or your student. So for whole development, आप जब किसी चीज को डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका भी डेवलपमेंट हो रहा है. Most of the time you develop yourself also. So by experience, you are all trained here. So your trained experience is required to your student also. मैं एक एग्जांपल ऐसा भी बोलता हूँ कि बहुत सारे स्कूल्स में एक सिस्टम है, उनका लर्निंग कल्चर है कि they are attending their assemblies, they are attending for play, they are attending for games, sports or any debate. उनमें क्या होता है कि we always praise her or him. Most of the time I provide certificate also, we distribute
distribute some prizes. So this is another thing. This is another thing. Congratulations. These are the very common for every individual. Most of the student, most of the school, they started their learning cultures. जैसे बहुत सारे schools में है handshakes. बहुत सारे schools में handshakes है. The reason behind that why they are doing handshakes with the students, it means they are heading towards one step. अगर आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो मतलब आप उसके लिए आप आगे आना चाहते हैं, ये मीनिंग है. बहुत सारे जगह पर आप इंग्लिश स्कूल में देखेंगे कि वो खुद हैंडशेक करने की कोशिश करते हैं ताकि वो रियलाइज करते हैं हाउ मच द कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट इज देयर. आप जब हैंडशेक करेंगे ना तो बहुत सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे क्रेजी हो जाते हैं, बहुत सारे चीज. हाउ यू फील व्हेन यू टच द हैंड्स ऑफ अदर, you can understand how much capacity in this student. आप उनका gesture posture से पकड़ सकते हैं कि ये students में कितना merit है. कुछ बच्चे जो है वो nervous हो जाते हैं, वो they cannot handshake with you. इसका मतलब है कि वो उनका merit कम है, वो shy करते हैं, वो shy nature के हैं. So these are the clues, small clues which can help you. What do you taught there? Only handshakes, but you can get more information about child as well as the student. आपने क्या सीखा? आपने उसको सिखाया कि सिर्फ आप हैंडशेक कीजिए, लेकिन हैंडशेक से आपने क्या सीखा? दिस इज इम्पोर्टेंट. दिस इज कॉल्ड लर्निंग कल्चर. ये चीज हम लोग नहीं कर पाते हैं, ये चीज हम कर. बहुत सारे स्कूल्स पे आरएसएस स्कूल है या विद्या मंदिर है, दे टीचर्स अलाउ टू टच द फीट. उनको कहते हैं वो हैंडशेक को अच्छा नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पैच हो, बिकॉज देयर एसोसिएशन, देयर ट्रेडिशन इज टेलिंग अबाउट कि अगर आप मेरा पैच होते हैं इट मींस यू रिस्पेक्ट एल्डर्स, आप बड़े का रिस्पेक्ट करते हैं. सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी not improving yourself but improving entire student, entire school. So I want to say these things. Learning culture is very important. I am saying this is a very small thing, learning culture. Everybody जानते हैं कि learning culture का मतलब क्या होता है, लेकिन they are implementing or not, they are using, implementation is required. आपका खुद डेवलपमेंट होगा. आप अगर नहीं सोचते हैं तो आप खुद डेवलप कर सकते हैं. सपोज कीजिए कि आप फर्स्ट डे आपका स्कूल है, न्यू सेशन है. आई एम गिविंग लॉट ऑफ एग्जांपल्स बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन टॉपिक्स एंड एवरीबॉडी शुड बी लर्न दिस टॉपिक. ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और ये आपके स्कूल जहां आप जॉब कर रहे हैं ये वहां पर बहुत हेल्प करता है. सो दैट्स व्हाई आई हैव चूजन दिस टॉपिक. मैं कह रहा हूं कि जैसे नया सेशन आपने शुरू किया, न्यू सेशन इज देयर, लॉट ऑफ द स्टूडेंट, there is a new and old as well. Suppose there is 1,000 students. In 1,000 students, you can easily remember who is the new student because their activity is different from your schools. Their activity is different from your old students. उनका पहनने का स्टाइल, उनका बोलने का स्टाइल, you can recognize most of the time. आप उसको क्या करते हैं, शुरू दिन तो आप कुछ नहीं बोलते हैं, आप नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि नया स्टूडेंट्स को आप ह्यूमिलेट नहीं करना चाहते हैं. लेकिन इमीडिएटली व्हाट हैपेंड इन नेक्स्ट डे, द स्टूडेंट हु इज न्यू कमर स्टार्टेड टू डेवलप देमसेल्फ एज अ ओल्ड वन. वो पुराने को देखकर सीख जाते हैं. इफ देयर इज ए if their hair is not groomed, अगर उनके बाल खुले हुए हैं, उनका grooming नहीं किया हुआ है, not arranged, quelling नहीं किया हुआ है, they are not looking good, their cloth is dirty. So next time they understand and realize what I am doing. All boys are looking good, only I am looking dirty. Next day वो मम्मी पापा से जाके बोलते हैं कि I am looking different from others. हमको ऐसे जाना चाहिए. वो तुरंत क्या है, 2 चोटी बना लेते हैं, 1 चोटी बना लेते हैं, रिबन बांध लेते हैं और अदर एक्टिविटीज दे स्टार्टेड टू डू.
अगर उनका नेल बड़ा है तो वो स्टार्टेड टू क्लीनिंग देयर नेल्स। अगर शूज उनके गंदे हैं, सबसे पहले तो वो यूनिफॉर्म होना चाहते हैं। ये बच्चे में सबसे अच्छी बात है, इमीडिएटली दे वांट टू लर्न फ्रॉम अदर्स। सो दिस इज कॉल्ड लर्निंग कल्चर्स। आपके स्कूल में अगर सभी चप्पल पहन के आएंगे तो न्यू बॉय अगर जूता भी पहन के आएगा तो दूसरा दिन खोल देगा। वो कहेगा कि नहीं, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, क्योंकि कल्चर ऑफ द स्कूल इज नॉट वेयरिंग शूज। मैं अदर एग्जांपल्स पुट करता हूं, बिकॉज एग्जांपल से आप थोड़ा इजी समझेंगे। अदर एग्जांपल्स ऑफ लर्निंग कल्चर, इफ सपोज a newcomer is in taking admission in your school and there he or she is speaking fluent in English, but in your school there is a culture of speaking Bhojpuri. आपके स्कूल में भोजपुरी बोला जाता है, जाइए खाइए होइए, है ना? तो आप उस बच्चे को दूसरे दिन से देखिएगा कि वो अपना स्पीकिंग को छोड़ करके आपके भोजपुरी। सीबीएसई, दिस इज अ वेरी tremendous harassment of that student. If a student is speaking in manner, and communication is very powerful, and he is coming to those school, there they are not applicable. उनको कितना विवेचना लगेगा कि nobody is speaking, they are speaking in Bhojpuri. CBSE does not provide this kind of activities. ये अच्छी बात है कि भोजपुरी this is also language, but when you writing your school, my school is a English medium school and you are providing Bhojpuri language. So how it is insignificant for everyone? कोई इसको टॉलरेट ही नहीं करेगा। So this is a kind of activity we provide in our school or classroom day to day. This is a very important. So lot of examples I have shared with you why it is important to provide learning culture. अब मैं बात कर रहा हूँ कि लर्निंग कल्चर कैसे डेवलप किया जाए और क्यों करना जरूरी है ना? अभी तक तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स, क्योंकि आई एम सॉरी वी कैन नॉट प्रोवाइड यू स्लाइड्स हियर बिकॉज some electricity shortage is there, but I am unable to do this kind of activity. So before starting learning culture, what is the mean by? Here beautiful definition is given about learning culture. A culture for learning is about the implicit ways in which the notions, beliefs, understanding about the purpose of teaching, learning processes are shaped in the everybody life of the school through the agency of stakeholders. What I have written here, but all the things I have given with the examples. Learning culture आप भी डेवलप कर सकते हैं. Nobody can help you. Your knowledge, your experience, your hard work, your sincerity, they can put, you can achieve with your experience. ये आप ही कर सकते हैं. जितने भी स्टेक होल्डर हैं, आई एम टेलिंग अबाउट द स्टेक होल्डर, whether he is a staff of my school, he is a teacher of my school, he is a director of my school, he is a principal of my school, anybody. The stakeholder means which is responsible for development of our school in day-to-day life. This is important. So, not only learning, but cultural learning is different, and it is happening with the help of yourself. ये तभी हो सकता है जब आप चाहें. आपके एफर्ट का बहुत ज्यादा आवश्यकता है. So can you share? I have already mentioned earlier that is the two-way dialogue is very important. So I request any examples can you put? I will be happy. कोई एक एग्जांपल आप बताइए that belongs to learning culture, जो कि आपको लगता है कि it should be happen in my school, it should be happen in my classroom. So according to your experience, I just request, अगर आप बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. Anybody?
मैम कोई एक्सपीरियंस? बिफोर प्रोसीडिंग आई जस्ट फिनिश व्हाट इज लर्निंग. आपने क्या सीखा लर्निंग कल्चर से? आपने क्या सीखा? आई हैव गिवन लॉट ऑफ एग्जांपल्स ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए. लेकिन अगर मैं उसके बाद चलूंगा और उसके पहले आपको नहीं समझ में आएगा, so it will not add it beneficially. Anybody? Ma'am? Back. हेमंत सर, Please allow. रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना? सर बच्चे को तो हम लोग चाहते ही हैं कि वो उसका डेवलपमेंट आए. जैसे कि बच्चे को हमको कहना चाहिए कि साफ सुथरा खाना चाहिए स्कूल में, उसके क्लॉथ क्लीन हो, उसका शूज पॉलिश किया हुआ हो. इस तरह से वो मतलब दूसरे बच्चे को भी देख के सीखते हैं कि हाँ हमें किस तरह से आना चाहिए. इस तरह से हम बच्चे को सिखाएंगे, बताएंगे कि आप साफ सुथरा होंगे स्कूल में आओ. Very good, ma'am. Thank you. Anybody? पूजा मैम. हाँ. टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. Very good. टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स को भी, हर स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए कि आप अपने क्लासरूम में बच्चे को चेक करें. बहुत वीक आप बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ताकि वो चेक करें बाकी स्टूडेंट्स को. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी वो सीखेंगे कुछ. This is the overall responsibility. I have mentioned earlier that this is not one way, or you can say only one can do. Everybody can do. This is a challenge for everybody. हर एक इंडिविजुअल से अगर आप कोशिश करेंगे तो it can be developed. ऐसा नहीं है. और स्टूडेंट तो हमारे पास आते हैं why? Because they have to learn. हम कितना उनको सिखाते हैं ये डिपेंड करता है स्कूल पर. दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर को भी मतलब कि ज्यादातर ध्यान देना पड़ता है. यस. और बच्चे लोग भी हम लोग से सीखते हैं कि मैम कैसे आ रही है, उनको Very good. भी कैसे मैम आ रही है, जैसे हम भी अच्छा से आए. Very good. मतलब स्मार्ट your uniform, your habits, your living style also influence to the students. Many childs learn from teachers. हम अपने भी बोलते हैं बच्चे को कि हम देखो किस तरह से रोज आते हैं, उस तरह से तुम भी ऐसे से बात करके आओ, ये साफ सुथरा करके आओ, ताकि तुमको भी बच्चे लोग साथ में बैठाए अच्छा से बोल पाओ. ये सब के लिए भी हम लोग बताते हैं. Very good. सर कुछ Thank you. स्टैंडर्ड में स्ट्रिक्टनेस होना बहुत जरूरी है. अगर वो स्ट्रिक्टनेस नहीं है तो बच्चे फॉलो नहीं करते, क्योंकि टीचर हर टीचर तो इंस्ट्रक्शन देते ही हैं, और फॉलो जब तभी होता है जब उसको स्ट्रिक्टनेस किया जाता है. That's why I am talking about this is learning culture. First, your responsibility is to learn the student. If they will learn, it should be continue for a long time. My mean to say कि अगर आप उनको बताएंगे ही नहीं, जैसे कि बहुत सारे कॉरिडोर में बच्चे रहते हैं, they are making noise. Once you try to give instruction, nobody make noise here. आपको यहाँ नहीं करना. चाहे अगर डिस्पर्सल में दे आर कमिंग आउट, सो दे विल नॉट कम इन हाउस. एक साथ मिल करके नहीं आना. दे हैव टू कम इन क्यू. दे हैव गो इन ए क्लासरूम विद ए क्यू. सो दिस काइंड ऑफ लर्निंग कल्चर इज रिक्वायर्ड. दिस इज नॉट एवरी डे यू हैव टू लर्न. आपको ऐसा जरूरत नहीं है कि आप इसके लिए बार बार उस बच्चे को करें, बिकॉज बच्चे भी समझते हैं कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी. हमारे लिए कौन सा जरूरी है. अगर हम क्लास में सिर्फ हल्ला करेंगे तो हम पढ़ाई कर करेंगे. दे अंडरस्टैंड. इसमें से बहुत सारे जो चीज है वो आपको बताना पड़ता है. आगे के टॉपिक में आपको बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस. जो आप लर्निंग कल्चर की बात करते हैं वो अलग क्यों होता है, व्हाई इट इज डिफरेंट. जैसे आपने कहा कि बच्चे को भी करना होगा. बच्चे को करना होगा तब जब हम करेंगे. अगर हम ही नहीं करेंगे तो बच्चे तो बाद में क्या सीखेंगे. हम भी आ जाएंगे स्कूल जिस तरह जैसे तो बच्चा क्या करेगा, मैम कैसे आए तो हम भी इस तरह से पहले हम ही उसको बच्चा लोग. ओके फाइन. एनीबॉडी? यस सर. हाँ. सर एक चीज और यहाँ पर है सर, लैकनेस ऑफ एनवायरमेंटल डिसिप्लिन. जैसे कि आप अपने इतने सारे शेड्यूल अगर सेट कर रहे हो और आप अपने आप में अपने वातावरण में एक डिसिप्लिन डेवलप नहीं कर पा रहे हो, तो आप बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. फर्स्टली यू कैन चेंज योरसेल्फ, देन यू एक्सपेक्ट द स्टूडेंट टू चेंज इट. एब्सोल्युटली राइट. मैम ने जो बोला ये बहुत बड़ी चीज है कि एवरीबॉडी इज लर्निंग फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट. आप जहां पर रहते हैं बेटा, सॉरी, आप जहां पर रहते हैं माय डियर टीचर, सॉरी,
आदत अच्छा, है। बोल रहे हैं, बच्चे लोग से वो बात करते तो हाँ, बोल बोले। देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपने जो बोला ये 100% ट्रू है। आपका बोलने का स्टाइल, Exactly, sir. आपके पहनने का स्टाइल, आपके चलने का स्टाइल, वेयर यू लर्न फ्रॉम योर नेबरहुड। आप अपने आसपास के लोकेलिटी से सीखते हैं। यही चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप जहाँ इन्वायरमेंट है, जैसे स्कूल में अगर इन्वायरमेंट मेरा भोजपुरी है, बच्चे इंग्लिश में नहीं बोलेंगे, Exactly, है ना? sir. तो it should be learned every day. मैं इसी बात को हाईलाइट कर रहा हूँ कि why it is important in your school. आपके स्कूल का इन्वायरमेंट आप कैसे जज करते हैं? बाइक आती है, आप जाते हैं तो आप स्कूल में घुसने के पहले ही समझ आते हैं स्टैंडर्ड ऑफ दिस स्कूल इज वेरी हाई। आपको लग जाता है कि यहाँ पर गार्ड्स हैं, गेम है, इनका ये स्टाइल है, दे कैन नॉट अलाउ टू इंटर इन योर क्लासरूम। तो बहुत सारे चीज फैक्टर है, बट दिस इज द डे टू डे हैबिट ऑफ लर्निंग। और ये कहाँ से होता है? तो आपके घर से, आपके स्कूल से, आपके नेबरहुड से। सो मेनी थिंग्स यू लर्न फ्रॉम योर लोकेलिटी। वेरी गुड। नहीं सर, एक पॉइंट और है सर कि बच्चों का सबसे ज्यादा मतलब ध्यान जो होता है या सोसाइटी में टीचर्स से बच्चे ज्यादा सीखते हैं, क्योंकि ओके, हाँ, फाइन। बहुत बार आप देखिएगा बच्चों को बोलिए कि सर, बच्चों को पेरेंट्स आके बोलते हैं कि सर ये होमवर्क नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं। अगर वही बात अगर सब काम वो छोड़ देता है और स्टूडेंट अगर टीचर कहता है कि होमवर्क कर नहीं लाना है, वो बच्चे टीचर से ज्यादा इंस्पायर होते हैं, माँ बाप से कम इंस्पायर होते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि ठीक है, Because they are giving maximum time apart from their parents. आप घर में बच्चे सबसे ज्यादा रहते हैं। Apart from that, they give maximum time in school. तो उनका लर्निंग प्लेस क्या हुआ? फर्स्ट तो उनका पेरेंटल हुआ, जो घर पर अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से सीखते हैं। आफ्टर दैट मैक्सिमम टाइम दे इन्वेस्ट इन स्कूल, जहाँ पर वो पढ़ते हैं। इसीलिए तो विद्या को मंदिर बोला गया है, स्कूल को मंदिर बोला गया है, बिकॉज वहाँ पर अच्छी चीजें सीखने के लिए आते हैं। तो बच्चे को जो चीज वी कैन प्रोवाइड एनीथिंग, अगर मैं उनको खराब सिखाने की कोशिश करूंगा दे कैन लर्न बैड थिंग्स। अगर मैं उनको अच्छा बोलूंगा तो अच्छा चीज सीखेंगे। तो बहुत बार ऐसा भी देखते हैं कि बच्चे जो यहाँ स्कूल से सीख के जाते हैं और अपने घर में वो प्रैक्टिस करते हैं, माँ बाप उनसे सीखते हैं। वेरी गुड। जैसे गुड मॉर्निंग बोलना, गुड आफ्टरनून बोलना, बहुत बार माँ बच्चे के बीच में इस तरह का इंटरेक्शन होते हुए देखा है। Interaction is very important. Vishnu sir, can you give any example? Put any example? This is very important. Very मैं इसको बहुत लाइक करता हूँ, ये टॉपिक को बहुत लाइक करता हूँ। सर, बच्चे लर्निंग कल्चर सीखे इससे पहले जरूरी है कि टीचर्स में लर्निंग कल्चर जो होना जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो है ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज को, और बच्चे जो देखेंगे उसी को ऑब्जर्व करेंगे। इसलिए बच्चे के सामने में एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा वातावरण, तभी बच्चे उस चीज को Absolutely right. Because their development depends on your responsibility is higher. Because you are dedicated for their development. आपको उसका बनाना है लाइफ, उनको आगे ले जाना है। तो अगर लीडर ही हमारा कमजोर होगा तो it cannot be possible. So dear friend, dear teachers, I am very happy that you understand the things very. Rajiv sir, can you put any example? Yes sir, बच्चे तो फॉलोअर्स होते हैं। Very good. जो हम लोग करेंगे, बच्चे ही नहीं, अगर अच्छा जगह से हम बिलोंग कर रहे हैं, तो अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एवरीबॉडी जितने भी आदमी हैं वो सब फॉलोअर्स हो जाएंगे, Very good. फॉलो करेंगे। Yes. Absolutely right. So clap for everybody. They have understood the things properly. So here is a word written implicit way. Implicit ways there is a meaning. Implicit ways का मतलब there is a way, एक ऐसा चीज है जो बहुत सारा चीज आप बोल के नहीं करते हैं। It cannot be said. बहुत सारा चीज, जैसे आप लंच लाने के लिए बच्चों को रोज नहीं बोलना पड़ता है। You never tell them to bring this kind of lunch. आप ये नहीं बोलते हैं कि आप
आज मैगी लाइए, कल समोसा लाइए, कल पूरी लाइए, ये लाइए। You never try to say because this is the unsaid. This is the unsaid. इसको हम लोग बोलते हैं expectation. There are two type of expectation. एक said expectation and another is unsaid expectation. मैं उसी के बारे में अभी बात करना चाह रहा हूँ कि what is two kind of states, जिसको कि हम लोग बोलते हैं। दो चीज हम लोग पढ़ेंगे जिसमें कि एक एक्सपेक्टेशन है और दूसरा बिलीफ है ना। तो सेट एक्सपेक्टेशन और अनसेट एक्सपेक्टेशन किसको करते हैं? कैन यू गिव एनी एग्जांपल? जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आप बच्चे को रोज लंच के लिए नहीं बोलते हैं, दिस इज सेट एक्सपेक्टेशन नहीं है, दिस इज अनसेट एक्सपेक्टेशन। आपको ये उम्मीद रहता है कि हर एक बच्चे लंच जरूर लाएंगे, आपको ये चीज मालूम है कि बच्चे यूनिफॉर्म पहनेंगे, आपको ये मालूम है कि बच्चे शूज पहन के आएंगे। आज वेडनेसडे है तो उनका आज का ड्रेस यूनिफॉर्म दूसरा है, आज सैटरडे है उनका यूनिफॉर्म दूसरा है। बिकॉज यू हैव क्रिएटेड ए लर्निंग कल्चर्स, आपने उनको डेवलप किया है। इट इज नॉट एंडिंग बाय वन डे, ऐसा नहीं कि एक दिन वो खत्म हो जाता है। जब एक बार बच्चे लर्न कर लेते हैं तो उसको वो रिपीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अनसेट एक्सपेक्टेशन। लेकिन सेट एक्सपेक्टेशन क्या है? व्हाट इज सेट एक्सपेक्टेशन? जिसको आपको बोलना पड़ता है। सेट एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या है कि इफ यू विल नॉट गेट 85% मार्क्स यू विल बी टर्मिनेटेड, दिस इज सेट एक्सपेक्टेशन। हर एक स्कूल का अपना अपना एक्सपेक्टेशन है ना। तो स्कूल का एक्सपेक्टेशन है कि अगर मेरा स्कूल स्टैंडर्ड है तो नोबडी कैन गेट मार्क्स बिलो देन 85%, दिस इज अ सेट एक्सपेक्टेशन। जब आप एडमिशन लीजिएगा उसी समय आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि माय एवरेज स्कोरिंग नंबर ऑफ दिस स्कूल इज नॉट बिलो देन 85%, दिस इज कॉल्ड सेट एक्सपेक्टेशन। आपका बहुत सारा चीज सेट एक्सपेक्टेशन है कि आपको जहां तहां गंदगी नहीं करना है, दिस इज कॉल्ड सेट एक्सपेक्टेशन, है ना। स्कूल का ये नियम है, बहुत सारे स्कूल बोल देते हैं कि यहाँ पर डस्टबिन है वहीं पर, दिस इज सेट एक्सपेक्टेशन, है ना। अब देखिए अनसेट एक्सपेक्टेशन इसको भी बोलेंगे कि अगर किसी स्टूडेंट जो न्यू कमर है उनको जब ये मालूम हो गया कि 85% से नीचे आने पर आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, सो व्हाट विल दे डू? दे विल वर्क हार्ड, वो क्या करेंगे? पढ़ाई मन से करेंगे। अगर मेरा 85% से नीचे अगर आ गया तो दिस इज वेरी बैड फॉर माय कैरियर, हो सकता है कि मैं स्कूल को छोड़ना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड अनसेट एक्सपेक्टेशन। अभी सेट एक्सपेक्टेशन मैंने बोला कि 85% इज रिक्वायर्ड, दिस इज मैंडेटरी फॉर एवरी इंडिविजुअल टू ब्रिंग ए स्कोर नॉट लेस देन 85%। उसी समय मैं बोल रहा हूं कि 85% जैसे ही एवरी इंडिविजुअल नो अबाउट दैट, दे वर्क हार्ड बिकॉज दिस इज अनसेट एक्सपेक्टेशन। अब उनको लग रहा है कि बात आपको नहीं बताया जाएगा, इट कैन नॉट बी डिलीवर्ड, द थीम इज रिपीटेड, बार बार ये चीज नहीं कहा जाएगा। जैसे कि आपका बहुत सारा चीज जो है, बहुत सारा सेट एक्सपेक्टेशन है कि आप गंदगी नहीं करें, आप वॉशरूम को साफ रखें, है ना। वॉशरूम का भी बहुत सारा रूल है कि आपके यहाँ सेकंड पीरियड में होना चाहिए, फोर्थ पीरियड में, दैट इज कॉल्ड सेट एक्सपेक्टेशन, दीज आर द कॉल्ड सेट एक्सपेक्टेशन। ये आपके स्कूल का बोला गया है। So there are two type of expectation, that is set expectation and another is unset expectation. उसी तरह से बिलीव जो है, सेट बिलीव और अनसेट बिलीव। तो सेट बिलीव पे है जैसे कि ये सभी लोग विश्वास करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ते ही होंगे, हमारे बच्चे हल्ला नहीं करते हैं, ये सेट एक्सपेक्टेशन है। बहुत लोगों को बिलीव है कि हमारा बच्चा जो है वो अच्छा करता है, हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड ज्यादा है कि हमारे बच्चे अच्छे करते हैं, दिस इज नोन एज अ बिलीव। ये उनका बिलीव है, स्कूल का बिलीव है कि हमारे बच्चे करते हैं। जैसे हमारे बच्चे स्कूल से डिस्पर्सल के बाद सीधे घर जाते हैं, दिस इज, ये पहले सेट बिलीव है, लेकिन कुछ दिन के बाद ये अनसेट बिलीव है। हर एक लोग को मालूम हो जाता है कि हमको वहीं जाना है, घर ही जाना है। अगर मैं बीच रास्ता में कुछ मजाक कर रहा हूँ, हंस रहा हूँ, तो आकाश सर पीछे खड़े होंगे। So this kind of belief is developed by teachers. ये कौन बनाया है? ये टीचर्स बनाया है कि अगर तुम मोबाइल लाओगे क्लास में तो you will punish. That is very important. ये आपके
लर्निंग में ये नहीं है मोबाइल लाना ये सब नहीं है। 85% लाना इट इज इंपॉर्टेंट, बट टू ब्रिंग ए मोबाइल इट इज हार्मफुल फॉर यू। दिस इज बिलीव। आपने उसको सिखाया है, आपने उसको लर्न कराया है। दैट्स व्हाई ही इज नॉट इन रेगुलर हैबिट ऑफ टेकिंग मोबाइल। उनको मालूम है कि अगर हम स्कूल ले गए, पता चल गया तो मेरी आज क्या है। So this is known as beliefs. So there are two type of beliefs. जैसे प्रिंसिपल है, उनको मालूम है कि हमारे टीचर काफी रेगुलर है और पंक्चुअल है, 8:15 में ही स्कूल पहुंच जाता है। ये पहले सेफ बिलीफ हो सकता है, ये उनका बोला हुआ है, उनको सिखाया हुआ है कि अगर 8:15 के बाद अगर आते हैं तो यू विल बी फाइन, ये आपका मार्किंग कुछ होगा, ये वगैरह है ना। ये बिलीव उस प्रिंसिपल का है, डायरेक्टर का है कि हमारे जो टीचर है दे आर वेरी मच पंक्चुअल। लेकिन आपको रोज अगर बताया जाएगा तो ये बिलीव नहीं कर रहे हैं, ये एक्सपेक्टेशन हो जाएगा। बिलीव का मतलब वंस यू ट्राइड इट इज फॉर एवर। आपके लिए विश्वास, ट्रस्ट बनाना होगा, आपको ये दिखाना होगा कि आई एम रीचिंग बिफोर 8:50, अदरवाइज आई विल बी ह्यूमिलेटेड। हर एक प्रिंसिपल को ये मालूम है कि हमारे टीचर असेंबली के बाद क्लासरूम में ही जाते हैं, कहीं जाकर के बाहर आका नहीं मारते हैं। सो दिस इज अ बिलीव। यू कैन से दिस इज अ फर्स्ट इट इज नोन एज अ सेड बिलीव, बट आफ्टर दैट इट इज नोन एज अनसेड बिलीव। सो दिस इज द एग्जांपल्स वी कैन पुट हियर। अनदर थिंग इज, अच्छा, जब आप सेड एक्सपेक्टेशन और अनसेड बिलीव्स को जब मिलाते हैं, जब एक करते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, देयर इज टू थिंग्स। मैंने बोला एक्सपेक्टेशन दो तरह का होता है, एक सेड एंड अनसेड। बिलीव भी दो तरह का होता है, एक सेड और अनसेड। लेकिन अब यहां पर क्या है कि अगर सेड एक्सपेक्टेशन और अनसेड बिलीव जब एक हो जाते हैं, दैट इज नोन एज एम्बेडेड एटीट्यूड। वो आपका एटीट्यूड बन जाता है, वो आपकी आदत बन जाती है। ये जो दो पॉइंट है जिस पर आप अगर रेगुलर वर्क करते हैं, दैट मेक्स योर स्टूडेंट, योर चाइल्ड, दैट इज एम्बेडेड एटीट्यूड। एम्बेडेड मतलब उसके अंदर में घुस जाना। जैसे होमवर्क बनाना, ये एम्बेडेड एटीट्यूड है, एक हैबिट बन जाना। ये अगर उनको आज होमवर्क मान के नहीं मिला, यू डोंट प्रोवाइड एनी होमवर्क, उनको लगता है कि आज क्यों नहीं मिला, बिकॉज they are in regular habit of doing these things. उनको घर पे जवाब देना पड़ता है कि आज उनको स्कूल में होमवर्क नहीं मिला, क्योंकि गार्जियन भी एक्सपेक्ट करते हैं why you are not doing anything, you have not got any information or any homework. वो उनको लगता है, फील करते हैं यार मेरा बच्चा क्यों खेल रहा है। So this is known as embedded attitude. एटीट्यूड बन जाता है, उनकी आदत बन जाती है ना। और जब अनसेड एक्सपेक्टेशन और सेड बिलीव एक साथ मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। अब इसमें देखिए ऑब्जर्वेबल बिहेवियर क्यों है, क्योंकि आपको हमेशा उस पर ऑब्जर्व करना रहता है, उनके बिहेवियर। आपने बोला कि जिसकी किसी की आदत है कि वो हिंदी मदर टंग है, आपने एक बार बोला कि यू हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, तो आप उस पर ऑब्जर्व करते हैं। मेनी टाइम्स यू लुकिंग फॉरवर्ड कि आप वो जो बोले हैं बच्चे कर रहे हैं। सो दिस काइंड ऑफ हैबिट इज नॉट देयर बिहेवियर, कि वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं, इसको कहते हैं ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ वी आर प्रोसीडिंग अबाउट व्हाई इज लर्निंग कल्चर इंपॉर्टेंट, है ना। अब यहाँ पर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि आखिर लर्निंग कल्चर क्यों जरूरी है। आप अपने घर में बहुत सारे फंक्शन में देखते हैं, या आई एम गिविंग, इफ यू डोंट थिंक अदरवाइज, बंगाली जो फैमिली होते हैं दे फील दैट अगर कोई बाहर जाते हैं तो वो अपने शू को बाहर रखते हैं, है ना। या हमारे भी कल्चर में है, लेकिन हम लोग कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। सो दिस काइंड ऑफ कल्चर, अगर मैं अपना घर का कल्चर बोलता हूँ, तो जहां पर कि आपको चप्पल, स्लीपर, जूता जो भी है, जब तक आप बाहर नहीं रखेंगे या साइड कॉर्नर में नहीं रखेंगे, यू कैन नॉट एंटर इन हाउस। सो दिस इज कल्चर ऑफ माय हाउस, क्योंकि मेरे घर का कल्चर ही है
कि मेरे घर में कोई भी इंटर करेगा, सो उनको शो ऑफ करना, बाहर रखना। सो दिस काइंड ऑफ कल्चर इज रिक्वायर्ड। तो मैं बात कर रहा हूँ स्कूल कल्चर, मतलब लर्निंग कल्चर इन स्कूल। तो स्कूल में जो लर्निंग कल्चर है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? कोई एनीवन? To develop your personality. पर्सनालिटी, वेरी गुड। पर्सनालिटी को डेवलप करना, अपने आप को अपडेट रखना, इंटेलिजेंट बनना, आपके बिहेवियर में स्मार्टनेस लाना, आपका एटीट्यूड चेंज करना। देयर इज लॉट ऑफ आंसर इज देयर व्हेन यू स्टार्ट टू डेवलप लर्निंग कल्चर्स। इट इज नॉट हैपनिंग इन अ वन डे, एक दिन में कुछ नहीं होगा। जब आप इसको रेगुलर वे में करेंगे देन यू विल बिकम हैबिट ऑफ डूइंग दिस। सो दिस इज द लर्निंग कल्चर। मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, एस्टैब्लिश द बिलीव्स, norms, values and expectation that the school has with respect to learning. अब देखिए बच्चे क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आपने उसको बिलीव किया है, विश्वास दिलाया है कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे यू विल फेल। गार्जियन ने आपको विश्वास दिलाया है कि यू गो टू संस्कार इंटरनेशनल स्कूल, यू विल लर्न मेनी थिंग्स। ये बिलीव है, नोशंस है। So these kind of attitude, ये आपका एटीट्यूड बन जाता है कि this is a priority. I have to be learn from संस्कार, so I have to go in संस्कार स्कूल, मुझे जाना ही होगा, because it is important. घर में अगर हम नहीं कर पाते हैं, that's why I am here, मुझे स्कूल जाना। तो ये आपको लर्निंग जो कल्चर है वो सिखाता है आपके एटीट्यूड्स को। Helps teachers and students to collaborate, engage। अब देखिए कोई अगर आपके क्लास में कोई बच्चा है जो काफी इंटेलिजेंट, बहुत तेज है, विद द हेल्प ऑफ दैट स्टूडेंट्स दे कैन इमिटेट बाय अदर्स। उनको देख करके दूसरे उनको कॉपी करना चाहिए। उसको क्यों नंबर आ जाता है 100%? आयान टॉपर क्यों हो जाता है? आयान सेकंड क्यों कर जाता है ना? सौरभ क्यों कर जाता है? बाई आई एम नॉट डूइंग। So these kind of examples they can put if your efficiency is developed. उस बच्चे में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, एफिशिएंट है, that's why he is intelligent and other. अब वो इंटेलिजेंसी दूसरे को हेल्प करता है। यहाँ पर ये है नहीं तो आपको दिखाते पिक्चर से, that is very helpful। आगे का पीडीएफ चल रहा है, ये आगे चलेगा नहीं आगे माउस कीजिए ना, लेफ्ट राइट माउस पीछे वाला उसको लेफ्ट राइट कीजिए, क्लिक कीजिए लेफ्ट राइट। हाँ हाँ क्या बोला? हाँ, why is learning culture important? हम ये देखा नहीं था, सॉरी। तो ये लर्निंग कल्चर सिर्फ स्टूडेंट को ही हेल्प नहीं करता है, मोस्ट ऑफ द टीचर इज लर्न फ्रॉम स्टूडेंट ऑल्सो। बहुत सारी बातें यू कैन नॉट फ्लुएंट इन ऑपरेटिंग मोबाइल्स, कंप्यूटर एज योर चिल्ड्रन इज डूइंग। ऐसा तो थोड़ा है कि आपसे वो बुद्धि में कम है इसलिए वो कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज देयर इंटरेस्ट इज नॉट एट पार। उनका इंटरेस्ट पढ़ाई में कम है लेकिन अदर में ज्यादा है। ऐसा नहीं कि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, डेवलप नहीं करना चाहते, बिकॉज योर लर्निंग हैबिट इज वेरी लो। यू हैव नॉट रीड द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। आपने उसको सिखाने की कोशिश नहीं की, आपने उसको बताने की कोशिश नहीं की कि एकेडमिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई दे आर नॉट डेवलपिंग। ऐसा थोड़ा कि उसको बुद्धि भगवान ने कम किया है, वो आपसे ज्यादा दिमाग लगाता है, यूज करता है और उसको ज्यादा प्रोसेसिंग करता है। You cannot do this because आपका इंटरेस्ट उधर नहीं है, your interest is something different. Meaningfully involved in innovate and learning। और ये क्या सिखाता है आपको? इंगेज सिखाता है। अगर मान लिया टीचर्स जो है आप सिर्फ क्लास में आइए बैठे रहिए, कुछ नहीं कीजिए, यू आर डूइंग जॉब, आप कर रहे हैं, आप अपने क्लास को सिर्फ शांत रखे हुए, लेकिन आपने क्या सीखा है? आपने आपको क्या सीखा? आपने क्या एंगेज रखा? क्यों बच्चे आपसे लर्न करते हैं? सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड। सो व्हाई इज द लर्निंग कल्चर इंपॉर्टेंट? टू डेवलप। बहुत सारे पॉइंट सोनी मैम ने बताया, वेरी गुड, जिसके कारण हम लोग सीख सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। और ये एक दिन में संभव नहीं है, इट विल टेक प्रैक्टिस।
ओके, अब इस पर जो नेक्स्ट है एक्शनेबल। अब ये नेक्स्ट जो है कि अगर मैं व्हाई इज लर्निंग कल्चर इंपॉर्टेंट, अगर ये इंपॉर्टेंट है तो इस पर कैसे एक्शन करेंगे। सो देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट इज देयर। सो फर्स्ट इज क्रिएटिंग द सोशल ग्लू बाय बिल्डिंग ट्रस्ट। Here is a 1, 2, 3, 4, 5. I am just reading. Develop policies and system to support culture of learning. Third is keep students at the heart of learning culture. And fourth is encourage teachers to deepen learning. Make parents active partners in learning. So there are few points. Here is highlighted. On the basis you can be a good learning culture. Okay, these are the actionable. You have to work on that. One thing is building a trust. Building a trust is very important. अगर किसी पेरेंट को आपके स्कूल में ट्रस्ट नहीं रहेगा, है ना, तो वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि हमारे बच्चे को यहाँ पर एडमिशन देना बेकार है। ट्रस्ट जो है एक दिन में नहीं बनता। अगर सपोज कीजिए कि कोई बस से आपके बच्चे जो है वो डेली स्कूल जाते हैं, एक दिन आपने उसको ड्रॉप तो कर दिया, लेकिन उनको लेने के लिए आप नहीं पहुंचे ड्यू टू सम इंपॉर्टेंट वर्क। योर स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक ए ट्रस्ट। व्हाई? बिकॉज एट द टाइम यू कैन नॉट ड्रॉप विदाउट टेकिंग एनी। अगर आप अपने बच्चे को छोड़ देते हैं, वहां पर कोई गार्जियन नहीं रहते हैं, यू कैन लूज योर ट्रस्ट। आप बहुत बार वो चीज सोचेंगे कि हमारे बच्चों को क्यों छोड़ा, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। So this is bonding relationship with parents, teachers as well as the student. So it is not one player can do the same things. Everybody has a responsibility. Second thing is to create a social glue for building trust. सोशल ग्लू का मतलब समाज से आपको जोड़ करके, समाज को भी देखना होगा। ग्लू होता है जो फेविकॉल वगैरह जैसे चिपक जाता है, तो वो कह रहा है कि ट्रस्ट और सेल्फ इंप्रूवमेंट ये तभी होगा जब आप सेल्फ करेंगे, इंप्रूवमेंट तब होगा जब आप किसी पर ट्रस्ट करेंगे। ये एक चीज नहीं है, दोनों जो तभी आप एक दूसरे को कर सकते हैं जब आप ट्रस्ट भी बनाएंगे और इंप्रूवमेंट भी होगा। अगर आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है इसका मतलब यू आर ट्रस्टिंग ऑन समवन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। पॉलिसीज, स्कूल की जो पॉलिसी है जिसमें आज मैम बहुत सारी चीज बोलने वाली थी, नीलू मैम, मैं चाहता था कि इसमें आप कुछ बोलिए लेकिन टाइम का थोड़ा सा कमी है।